from where they normally were. Conventional opening pair, but they've done incredibly well. And everyone's talking about GT's weakness being their batting, but the only reason for that is because they've got an incredibly strong top three. So it's not really a weakness. Shubman Gill, Sai Sudarshan, right-left-hand combination poses a lot of problems to bowlers. Difficult to find the perfect areas up front. But it's a crucial part of the game here tonight, as RCB would love to get a breakthrough early on. Now here's something interesting. The ball's been thrown to Jacob Duffy. I'm quite surprised by that. We've seen Bhuvaneshwar Kumar be so effective in the first over. But you can also understand the extra pace, the extra bounce of Duffy. There's a slip in place. Try and find that nick early. Just wonder if he likes the new ball. He took the new ball in the qualifier too. It's interesting, at the auction, they waited and they waited and they waited for Duffy as a backup to Hazelwood. Now he's got the new ball ahead of him. Here's the countdown to the finale. Here we go, first ball, IPL 2026 final. Good first ball. Just a little bit of swing. Yeah, it's a hint of swing there. And I like the fuller length to Sai Sudarshan. We know how damaging he can be square of the wicket, both off and leg side. So I don't mind this. Pitches it up. A hint more swing, and that's thumping into the front pad. Get that length of nice and full. Challenge Sudarshan to hit the ball down the ground. One ground where the quicks have done better than the spinners, even on economy rates. It's not always. But you see that again, a little bit of swing. He's got to be careful. The length is good. It's still ideal to find the top of the stumps. I would still pull back a little bit. I like the fuller length, don't get me wrong. Just a touch back, as some of the best bowlers in the world, they always talk about finding the top of the stumps. And the sooner RCB can find that perfect length, the better. They'll be communicating during his first few balls. Duffy and the mid-off will be talking to each other. Should I pull it back a touch? Just 1 foot maybe. Plays fine, that's the first boundary. The first of many you would imagine on this surface. And the Gujarat Titans are up and running. It's a left-hander's dream first up. Just sliding down the leg side. Good top order players are never missing that. To get that first boundary will just settle the nerves for Sai Sudarshan as well. Every player, no matter how many times you've been around the block, they feel nerves. There'll be tension, there'll be expectation. Now that the length was too full. And he'll be breathing a lot better, Sai Sudarshan. That's the problem with that length. The minute it doesn't swing, it creates a bit of width. And Sai Sudarshan can just hit through the line. This time around, holding on to his bat. Finding the middle of that bat, that's for sure. And an absolutely glorious shot as they move to 8. Like how you subtly said, holding on to his bat. Now there was a little sound as it passed. The finger's gone up. Is this an early wicket already? He has reviewed immediately. He has reviewed immediately. There's a sound as it passed. We have a player review for a caught behind. Original decision is out. I've checked the feet. It's a fair delivery. Front on, please. Out से clear हो. Orange cap भैरव के नाम आउनु पर्यो कि Ball is passing close to the bat and the glove. You have anything from behind for me? Soko sir. Soko sir. Sorry, sorry, Sir.
Okay, copy. You can give me ultra edge to confirm, please. ऑलराइट मत देखो, थोड़ा सो जा रहा है यार, टच हो रहा है बैट में, सो रहा है, कंफ्यूज नहीं है, जाओ भाई, आज तो बॉल नहीं फेंका। It's a flat line as the ball passes the bat. Satisfied, no bat involved, and ball is also clearly passing down the legs. ओए Nitin, नो out and signal wide, please. Thank you. In the GT camp, साउंड आ even रहा the था, big man is relieved. Well, I've just seen all the साउंड आया emotions तो वाइड बॉल हो in गया। a couple of minutes there, the excitement. You know how big this first wicket is, and to have that overturned, so Sudarshan will be breathing a sigh of relief. He was quick to go for the आरसीबी review के though. लिए बहुत खतरा है, अब से बहुत मुश्किल होगा। Haydos still umpiring from the dugout. ये दोनों बहुत डेंजर है। And that'll be wide. Now, what's interesting is when he was playing in the test matches, Right. they set a trap for him. He was out twice, caught a leg slip in the test matches. But this time, it's not a great trap because there is no fielder there and it'll be wide. I was going to say exactly that, Ash. There's no leg gully or leg slip. It's not even a fine leg. You don't really call that a fine leg. That is like a deep square leg kind of fielder that's out there. So no real protection on the leg side when it comes to fine leg area. He's got to find his straps here, Duffy. He's taken the first run quickly. That's all there will be. We've seen the ball shape back in a couple of times, and here's Duffy. This one just slides down leg, but he's tried to go the other way. ये ओवर विकेट आउट सा। अब आया है मेन स्ट्राइक बॉलर आरसीबी का भुवनेश्वर कुमार। इस बार जो गेंदबाजी की है, पेस बॉलिंग, स्विंग बॉलिंग की परिभाषा को बहुत कुछ बदल सा दिया है भुवी ने। वो डिग्री और जो मूवमेंट है वो भी ज़्यादा मिला है इस सीज़न। पहली गेंद भी सटीक लाइन। और कैफ भाई, सवा भाई, एक चीज़ दिखाई है भुवनेश्वर कुमार ने कि अगर आप अच्छे एरियाज में गेंदबाजी करते रहेंगे, अच्छे बेसिक्स फॉलो करते रहेंगे, डेथ ओवर में वो यॉर्कर, तो फिर इतना आसान नहीं होता वो रन बनाना। और बेहतरीन गेंद यहाँ पे, पिछली गेंद वो टप्पा खाई थी, हल्का सा अंदर आई, और इस बार बाहर की तरफ गेंद गई है। और इस सीज़न की भी अगर बात करेंगे तो वहाँ पे अंदर की तरफ आने वाली गेंदों पे तकलीफ हुई है, और 2 बार आउट भी किया है इन्होंने। तो इनका मैचअप जो है बहुत अच्छा है। हमेशा तकलीफ में नजर आते हैं शुभमन गिल जब भुवी के खिलाफ बैटिंग करते हैं तो, और आज भी वैसा ही कुछ चाहेगी आरसीबी, क्योंकि एक मेन बल्लेबाज है ये जीटी के। पिछले बार जब बॉल किया था वो बॉल थोड़ी आगे थी। वैसे तो हार्ड लाइन डालते हैं, पर इनके लिए ज़्यादा बॉल आगे रखते हैं। उनको मालूम है बैट पैड में गैप बन जाता है। वाह 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 वाह, क्या शॉट लगाया ऑन दी, आप खड़े खड़े 4 मिल गए। इस शॉट से एक और चीज़ सामने आ रही है कि ये विकेट बहुत ही शानदार है। पिछले ओवर में भी जो कवर ड्राइव लगाया था साई सुदर्शन ने, उससे भी अंदाजा हो गया बैटर्स को। ऑफ द विकेट थोड़ा सा मूवमेंट था, पर कितने अच्छे तरीके से इस ऑन द राइज ये शॉट खेला। इसीलिए गिल ने टॉस पे कहा था कि हम बैटिंग करने वाले थे इस मैच में। अमूमन वो टॉस जीत के या हमेशा पूरे आईपीएल में फील्डिंग करते, पर यहाँ पे खुश थे वो। पिच थोड़ा धीमा है, शॉट लग रही है, अच्छा पिच है बैटिंग के लिए। इतना बॉल पड़ने के बाद सीम मोमेंट दिखा नहीं, यहाँ अमूमन वो होता है, पर अभी तक जो शॉट लगाया था, वो जो चौका, वो ऑन दी आप अच्छी बॉल थी। ये ड्राइव देखे ना, पिच के लिहाज से वो बॉल दूर है, पर वेट करके शॉट लगा दिया। और ये तो हार्ड लेन थी कि ताकत है भुवनेश्वर कुमार की, हार्ड लेन पे बल्लेबाज को परेशान करते हैं। वहां पे ऑन दिया, बहुत खूबसूरत शॉट। अच्छी शुरुआत है इस फाइनल में जीटी द्वारा। थोड़ा स्टेप आउट करके खेला, उसके लिए फील्डर है पीछे। एक और अच्छी बात लगती है इन दोनों बैटर्स में, ये पूरे सीजन हमने देखा है कि ये दोनों के दोनों बाउंड्री हिटर्स हैं। और ख़ास करके पावर प्ले में जब आपके पास इनफील्ड में इतने सारे फील्डर्स रहते हैं इनसाइड द सर्कल, वहाँ पे गैप ढूंढना, गैप को पियर्स करना, सही प्लेसमेंट,
ये जो स्किल सेट है ये इन दोनों बैटर्स को अलग बनाता है। ये दर्शाता है कि रिस्क जो है कम लेकर भी रन बनाए हैं इन दोनों बैटर्स ने। लगभग 900 के करीब रन जोड़ चुके हैं और एवरेज देखेंगे तो वो 63 के आसपास, 4 शतकीय साझेदारी, और ये ताकत रही है जीटी की बहुत बड़ी। गुड डिलीवरी, 18 बिना किसी नुकसान के। ये भी सही है रजत पाटीदार का प्रोएक्टिव कप्तानी। पहले ओवर में 13 रन दिए थे डफी ने। एहसास हो गया कि यहाँ पर आपको विकेट टेकिंग बॉलर्स की जरूरत है। वापस लगाया है जॉश हेजलवुड को, स्टेप आउट करके ये शॉट खेला बेहतरीन, इनफील्ड को भेदा, वन बाउंस इनटू द फेंस। इरादा लेके आया वो शानदार है। मकसद देखे ना, मकसद बड़ा फाइनल, पहली बॉल आगे बढ़ के वन बाउंस चौका, सामने गेंदबाज है हेजलवुड। शुभमन गिल का फॉर्म जिक्र किया तो 100 बना के आ रहे हैं। आपका जो यकीन है वो 7वें आसमान पे होता है। कदमों का इस्तेमाल करके आगे बढ़े, उसके बाद वो गेंदबाज उनको फॉलो किया, पर प्रहार देखें, वन बाउंस चौका। ये टॉप कॉर्नर, बड़ी बाउंड्री है वहां पे, हवा में लीडिंग एज। मेरे को मालूम था, रजत पाटीदार ने, मालूम था। कप्तान ने वो काम किया, कप्तान ने कैच पकड़ भैरव के हाथ में ऑरेंज कैप, भेजा है। आईपीएल बहुत कंफ्यूजन था कौन कैच पकड़ेगा, 2026। कप्तान ने हाथ उठाया। रजत पाटीदार, बहुत बड़ा झटका ये जीटी के लिए। शुभमन गिल, तो क्या होगा, पहली गेंद पे वो कदमों का इस्तेमाल करके चौका, और उसके बाद वापस हार्ड लेंथ की तरफ गए जॉश हेजलवुड। वो शॉर्ट आर्म जैब जो ताकत रही है हमेशा से शुभमन गिल की, इस बार वो खेलने का प्रयास था, लेकिन लेंथ इतनी ज्यादा छोटी थी नहीं, उसी के चलते नियंत्रण मिला नहीं, ऊपर गई गेंद सिर्फ। इस जगह में आरआर एक था फाइनल में, कंफ्यूजन जरूर था, कुछ देखने में अच्छा होता था। मौजूद थे, लेकिन कैच पूरा किया शुभमन गिल, 10 रन बना के वापस। जीटी के जगह में आरआर एसआरएच फाइनल डिजर्व करता था। आरसीबी के मुकाबला आरसीबी को घोड़ा टेकने में मजबूत करता था। जीटी के वो औकात नहीं है। साई सुदर्शन आउट होगा तो कुछ भी नहीं होगा, उसका कोई भरोसा नहीं है। मेरे क्यों लगता है ओवर में दूसरा अपना विकेट आएगा जैसे लगता है। जॉस बटलर ने पूरे सीजन नंबर 3 पर बल्लेबाजी की है, सिवाय एक मैच के केकेआर के विरुद्ध। ऑफ द मार्क पहले ही गेंद पर, और क्या विकेट मिला है यहाँ पर आरसीबी को, जो जॉश हेजलवुड ने कारनामा किया यहाँ पर शुभमन गिल के सामने। जब आरआर को अनुभव तो है नहीं, हेलमेट किया ना जेटी ने, मेरे को एक दिन लगा था कि आरसीबी इस मूव से दूसरा बार ट्रॉफी उठाएगा। और ये बहुत बड़ा झटका, पहली थोड़ा शॉर्ट बॉल थी कमर के आसपास, उसमें कंट्रोल दिखाया था। ऐसा शॉट मारता है। से भाग के वो इंदौर से भागे, दिल्ली में कैच लिया, उनका कैच नहीं था वैसे, कैच तो डफी का था, मैदान पे खड़े थे, वो हिले ही नहीं, पर पाटीदार ने बोला भैया ये बहुत बड़ा लम्हा है इस मैच का, मैं खुद भाग के कैच लूंगा।
ये ताकत है। हार्डन डाली थी गिल को, चौका लगाया, उसके बाद बॉल को आगे रखा, वो शॉर्ट बॉल थी नहीं। जब गिल आउट हुए वो शॉर्ट बॉल नहीं थी ज्यादा। इतने बड़े गेंदबाज औकात नहीं है बहुत जीती बड़ा विकेट लिया यहाँ पे चौका खाने के बाद फाइनल में। और अमूमन हम यही तो बात करते हैं ना कि किस खिलाड़ी ने कितने इन बड़े मैचों में जाके प्रदर्शन किया है। तो बिल्कुल सही आपने बोला कैफ भाई, पिछले कुछ मुकाबलों में अच्छा फॉर्म नजर नहीं आया, लेकिन आज जहां पे सबसे ज्यादा जरूरत थी वो बड़ा विकेट चटकाने की, पहली गेंद पे चौका लगा लेकिन लेंथ में सुधार किया और उसके चलते वो गलत शॉट खेलने के लिए आमंत्रित किया और वहां विकेट भी चटकाने में सफल रहे। बहुत से बल्लेबाज ना उस बॉल को कट करते हैं जब गिल आउट हुए। भैया ये इनका देख लो आप, ये किस्मत इतनी खराब थी कि दोनों बार बैक टू बैक मैचेस में बल्ला छूटा, बल्ला गया स्टंप। क्योंकि आज स्पिन लगता है मेरे को ऐसे होगा जैसे लगता है। उनका भी जो बॉटम एंड था छूट गया था, पर वो विश्वास टॉप नहीं साइड है। से कंट्रोल किया। बिलीव नहीं करता हूँ मैं। इतनी बार देखा बल्ला छूटा है, 2 बार तो पहले आउट हो चुके हैं, यहाँ भी ऑलमोस्ट छूट गया था। आज भी छूटेगा। ये बहुत ही अजीबोगरीब समस्या है यहाँ साई सुदर्शन के लिए। साई सुदर्शन का आज भी नहीं छूटेगा तो मारेगा मालूम है। छूटना, विकेट पे जाके टकराना, वो खुद का विकेट खाता है। गुड डिलीवरी, बहुत ही शानदार ओवर हेजलवुड का, 24 पर 1। फाइनल है, फाइनल भाई। कम थोड़ा में पनि 12 से ऊपर रन बनाउन शायद आवश्यक पर्छ। कोहली बोल रहा है वो हमरा है, दूसरा काफी हमरा है बोल रहा है। विराट कोहली खेल के जाएगा। देख रहा है मेरा सुपर ग्लोब नहीं लाना चाहिए कार्ड में। भूवी, शुभमन गिल का विकेट गिरना बहुत बड़ा मोमेंट है इस मैच का। 6 है 6। वो गेंद अच्छी डाली थी, 10। अच्छा कमबैक था जॉश हेजलवुड का। और इस बार ऑन साइड में खेलने की कोशिश, बॉल थोड़ी होल्ड करके एक्स्ट्रा बाउंस प्राप्त हुआ था। रजत पाटीदार का अच्छा कैच और शुभमन गिल का बहुत जल्दी विकेट गिरना, ये अननोन टेरिटरी है जीटी के लिए। अब ये चैलेंज रहेगा जीटी के बैटर्स के लिए कि यहाँ से उस गेम को आप कैसे आगे लेकर जाते हैं। कौन कट है? नहीं मारते ना विराट कोहली, शुभमन गिल वो ज़्यादा पुल मारते हैं और कट बहुत कम लगाते हैं। वो बॉल पंच वाली बॉल थी, ज़्यादा शॉर्ट बॉल थी नहीं, इसलिए कंट्रोल दिखा नहीं बल्लेबाज के सामने, अब अपना विकेट गंवाया। बल्ला से उनका हाथ छूटा है। वो तो ऐसा है। देखिए ये शॉर्ट बॉल है कमर के आसपास, ये बॉल पुल की नहीं है, या स्टंप के बाहर की लाइन है। बहुत से बल्लेबाज हाई एल्बो के साथ शायद वो पंच करते, पर इनका मानना था पुल किया, हार्ड लेंथ थी, ज़्यादा शॉर्ट बॉल थी नहीं और वहाँ पे कंट्रोल गंवाया। अच्छा कैच पाटीदार का। विराट कोहली भी कट बहुत कम मारते हैं, वो होल्डर ने 2 बार आउट किया है स्टंप के बाहर की लाइन पे। पुल अच्छा मारते हैं पर कट नहीं। शुभमन गिल में भी बिलीव कर सकता हूँ ये शुभमन गिल का। साई सुदर्शन को। आरसीबी के लिए पावर प्ले में इन दोनों पेस बॉलर्स का शानदार प्रदर्शन रहा है, भूवी का भी और जॉश हेजलवुड का भी। और गूगल सर्च मोड में, नए एआई मोड से हम लोगों ने यही सवाल पूछा है कि जॉश हेजलवुड पावर प्ले में इतने असरदार कैसे साबित होते हैं। और जवाब भी हमारे पास है कि हेजलवुड की कामयाबी का राज उनकी अचूक लाइन लेंथ है, सदी हुई रणनीति है, लगातार हार्ड लेंथ पर गेंदबाजी करना, लंबे कद की मदद से तेज़ उछाल, पावर प्ले में रन रेट पर लगाम कसते रहना, लेंथ में परिवर्तन, कई सारी चीज़ें आप जान सकते हैं। और इससे ज़्यादा भी अगर आपको जानना है तो एआई मोड में फॉलो अप सवाल भी आप पूछ सकते हैं। क्या हो गया? मैं बोला साई सुदर्शन रिकॉर्ड साई सुदर्शन का विकेट लिया है भुवनेश्वर कुमार ने, रिकॉर्ड को बचाया। टॉप इस समय आरसीबी।
पिछली गेंद पे वहां बाउंसर डाली थी तो वहां लेफ्ट किया था, लेकिन इस बार बाउंसर थी बहुत ज्यादा ऊपर थी, और जब खत्म आप हो ऐसा गया। शॉट खेलने की कोशिश करते हैं तो नियंत्रण रहता नहीं है। अब तो नहीं छोड़ होगा। दे तो शायद वाइड भी हो सकती थी, लेकिन वो रश ऑफ ब्लड नजर आया। आरआर को छोटी बहुत गेंद वो उछाल किया मिला तुम लोग। और सर से बहुत ऊपर जाती गेंद हुक करने का ये प्रयास, जगह में अच्छी फाइनल लाइन ऑप्शन के आरआर बाद होता था ना और ये। वो किनारा लगा और एक अच्छा कैच वहां पे जितेश शर्मा ने पूरा किया और एक बहुत बड़ा झटका दिया वहां पे जीटी को। फाइनल क्योंकि को दोनों औकात तो बल्लेबाज नहीं है कि बेहतरीन जीतेगा। बल्लेबाजी और अच्छी फॉर्म से गुजर रहे थे, बस दोनों को यार, वापस भेजा। साई सुदर्शन आरआर 12 रन बना के वापस, फाइनल 26 में पे 2 जीटी। जगह वही को था। क्या किया, जादू किया कि मंत्रा बॉक्स। क्या करेगा बदला, इंटरनेशनल में करता है, आईपीएल में खत्म हो गया। आज नेपाल के साथ गेम हो रहा था, एशियन क्वालिफायर, उसका रिकॉर्ड तो ब्रेक नहीं करेगा जीटी, क्योंकि मेरे ऐसे लगता है। छुट्टी लेके बैठा हूँ भाई फाइनल गेम के लिए। अब लालती जॉस गेम बटलर नंबर खेलता है 4 पर, और वो दोनों ओपनर्स का विकेट गिरना ये बहुत घातक है जीटी के लिए। दोनों ओपनर से ढेर सारे रन बनाए हैं इस साल, एज अ पेयर भी और इंडिविजुअल तरीके से भी। अब बहुत खुश हुए और आरसीबी टॉफी के वाला और तो खुश नहीं है। सिंधु और ये भैरव सूर्यवंशी के नाम में अब वो फाइनल मैच का अपने घर पर खेलना जीटी के और लिए, इन क्या उसका तब भी- दबाव है या फिर बहुत कम वक्त मिला इन दोनों बैटर्स को रिकवर हो करने गया। का? कि जो शॉट सो सिलेक्शन हैप्पी। था, ये तो वो जो कंफ्यूजन डायरेक्ट हिट क्या है, वो जो शॉट सिलेक्शन था उसके बारे में इसके बाद वाले वेट ओवर में करना बात कर सकते जरूर हैं। नहीं है, वो बहुत ही आवश्यक नहीं है। साधारण था दोनों का। स्विंग का में तो बाउंसर पे गए गेंदबाज भुवनेश कुमार, चला गेंदबाज हैं। बहुत फाइन खेला, बहुत फाइन खेला, वाइड इसको एलेक्ट था, चौका मिल गया 30 मिनट और 4 के बाद। A most valuable player IPL 2026 Bhairav Suryavanshi. Always Indian fans, you agree or not agree? I Nepali fans always agree. शुभमान गिल तो रेशन में गा के सो जाओ। मेरे को मालूम था आरसीबी के पल्ला पड़ेगा तो तुमको ऐसे भारी पड़ेगा। आरआर को आरआर पूरी तरीके से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को लगेगा कि ये 4 ओवर की शुरुआत उनके हित में है। डिफेंडिंग चैंपियंस ने अटैकिंग बॉलिंग करके गुजरात टाइटंस की जो सबसे बड़ी ताकत रही है, दोनों को वापस डगआउट में भेजा ऐसा है। करके क्या खेलेगा? इस मैदान पे गुजरात टाइटंस के सामने एक फाइनल हारा था जॉस बटलर ने राजस्थान रॉयल्स की पोशाक में। आज क्या गुजरात टाइटंस के लिए कुछ खास कर सकते हैं? नहीं सकता है, टाइटंस की उम्मीदें बटलर पे, साथ में नहीं निशांत सकता है। सिंधु, करियर का ये पहला बड़ा पल। लिख के रखता हूं, नहीं होल्डर सकता है। एक लड़ाई लड़ने की आवश्यकता, पावर प्ले, इसके बाद एक और ओवर उपलब्ध। मोहम्मद कैफ सबा करीम कमेंट्री बॉक्स में, लेकिन पूरी तरीके से अनुमति है, अटैकिंग फील्ड्स लगाइए और क्या उस पे काउंटर अटैक कर सकते हैं? पावर जिगरा प्ले। दिखाया है शॉट में। पावर प्ले नहीं है, ये तो एक रन का फील्डर था। के आसपास से बॉल गई वैसे, 200 वहाँ फील्डर क्रॉस तैनात किए हुए कर थे। नहीं सकता है। सिंधु ने बल्ला फेंका, वाइड बॉल थी, हवा में गेंद फाइनल पर में गैप थोड़ा में चली में गई। ये फील्डर 250 तो क्रॉस करना चाहिए। विराट कोहली खड़े थे, जिक्र हुआ था धीमा पिच है, इतना ये यहाँ इस पिच में बाउंस कम है, उछाल कम है। ये अच्छी बल्लेबाजी कंडीशन है पर 2 विकेट गंवा दिए गुजरात ने।
भुवनेश कुमार की तारीफ करूंगा मैं, बहुत चालाक गेंदबाज। पहले बॉल आगे डाली, गिल ने ऑन द आप चौका लगाया, फिर वो बाउंसर पे आ गए। इतना स्विंग मौजूद नहीं इस पिच पे। अच्छे से गाइड करने की कोशिश, थोड़ी और गति मिल गई फील्डर के घुटने से। ये बोनस की बाउंड्री, हर तरीके से रन स्वीकार है गुजरात टाइटंस के लिए। ये बहुत कम बार मैदान में देखने को मिलता है। भुवी एक बहुत ही सेफ फील्डर थोड़ा है। इतना पण नहीं करेगा तो क्या फाइनल है। मिसफील्ड, जैसा कि कैफ ने कहा जतिन कि ये विकेट बहुत ही शानदार है, बैटिंग कंडीशंस आइडियल है और यहाँ पे अप्रोच जो सिंधु ने दिखाया और पहले चौका लगाकर वही अप्रोच जायज़ होगा। 2 विकेट जो गिरे हैं वो ऐसे नहीं है कि सीम मूवमेंट ज़्यादा है या एक्स्ट्रा बाउंस है, वहाँ पे ख़राब शॉट सिलेक्शन की वजह से विकेट गिरे हैं। तो जीटी के लिए जो विकल्प यहाँ पे हैं कि आपको एग्रेसिव अप्रोच के साथ ही बैटिंग करते रहना होगा। अब ये जो विकेट गिरा है ये शॉट था ही नहीं खेलने वाला, तो शुभमन गिल ने किया और इस तरह की गलती बहुत कम बार शुभमन गिल से हमें देखने को मिलती है। उसके बाद ये दूसरा विकेट, ये बॉल कहाँ थी, बहुत ज़्यादा ऊपर, वहाँ से हुक करने की कोशिश। टॉस पे शुभमन गिल ने खुद कहा था ये विकेट बहुत अच्छी है, पहले 3-4 ओवर के बाद और सेटल हो जाती है। तो पहले 3-4 ओवर जब आउट हुए थे, खुद एक बाउंड्री लगाई थी पिछली गेंद पे। पावर प्ले में 2 से अगर ऊपर विकेट लेते हैं तो 9 में से 7 मुकाबले जीते हैं। पाटीदार भाई, और बाकी टीम्स की रचना में और गुजरात टाइटंस की रचना में पावर प्ले के ये 2 विकेट, ये इनका प्रतिशत और इनकी जो कीमत है वो बहुत ज्यादा है बाकी टीम्स की तुलना में। नए हीरोज उभरने का मौका है गुजरात टाइटंस के लिए। कौन हीरो डालेगा? बटलर पे होगा क्योंकि वो तजुर्बेकार बल्लेबाज है। बटलर आउट होगा तो 200 बनाए हैं। दोनों इनफॉर्म बल्लेबाज आउट हुए, शानदार गेंदबाजी। साई आउट हुए, गिल आउट हुए, स्विंग मौजूद नहीं है, बॉल इतना मूव नहीं किया तो गेंदबाजों ने प्लान चेंज किया। भुवनेश कुमार थोड़ा में भी आरसीबी करूंगा 250 चाहिए, डाल के बल्लेबाज का आउट किया, पर यहाँ पे 250 जरूर चाहिए। भाप लिया कि बॉल स्विंग कम कर रही है, मुझे अलग प्लान लाना पड़ेगा और बाउंसर डाली, वाइड लाइन डाली और साई को आउट किया। पूरा ध्यान बटलर पे है, ये कारनामा करेंगे तभी कुछ मेरे को सही नहीं लगता है जैसे बटलर करेगा। छोटी गेंद से टेस्ट किया लेकिन कोई शॉट ऑफर नहीं की। विकेट की कीमत जानते हैं बटलर। 5 ओवर समाप्त। ये बोलता है हमारा नेपाल का ओपनर कौशल भोटेल अच्छा से छक्का मार सकता है, ये वाला बॉल आएगा जरूर। ऐसा दौड़ के मार के औकात नहीं है जीतेगा फाइनल में। जो मैंने वो लोग आर को क्या करे, आर को पक्या है ना। पावर प्ले की आखिरी 6 गेंदें, इस समय उन रन्स के साथ साथ विकेट्स की अहमियत है गुजरात के लिए। 16 विकेट्स का सीजन रहा है रसिक डार का। अमूमन बात भुवनेश्वर कुमार की होती है जो बिल्कुल तारीफ योग्य है, पर्पल कैप के कंटेंडर है। जॉश हेजलवुड को आरसीबी फैंस ने हेजल गॉड बुलाया है। भुवनेश्वर कुमार पर्पल कैप, रसिक डार का सीजन उस तरीके से 16 विकेटें और हर फेज में विकेटें। गुड पॉइंट जतिन, ये बहुत ही वाइटल कॉग है इस बॉलिंग अटैक के। रसिक डार थर्ड सीमर के रूप में आपको इस तरह का बॉलर चाहिए जिसके अंदर वो अनकैनी एबिलिटी और विकेट लेना, वही किया है इस साल। 16 विकेट लिए रसिक डार ने। और कई बार ऐसा होता है कि ये दोनों आपके जो टॉप बॉलर्स हैं उनके सामने अगर विकेट नहीं मिलते हैं या फिर उन्होंने विकेट लिया होता है तो बैटर ट्राई करता है इनके ऊपर अटैक करना। तो इस दबाव में भी कई बार रसिक डार ने बेहतरीन गेंदबाजी की है। तो आइडियल सपोर्ट इन्होंने प्रोवाइड किया है भुवी और हेजलवुड को। ये दावेदारी किसी की बुरी नहीं है, ना रघुवंशी की, ना कार्तिक त्यागी की, ना प्रिंस यादव की, ना रसिक डार की। परेशानी ये है कि वैभव सूर्यवंशी ने इमर्जिंग प्लेयर की जो अपनी दावेदारी रखी है इतनी आगे निकल गए हैं। अभी शायद ऐसा मानना है कि पर्पल कैप और डॉट गेंदें छोड़ के बाकी लगभग सारे अवार्ड्स अभी इनके नाम है।
विड्स पे शॉट अच्छा, लेकिन पीछे फील्ड की सजावट है। 776 रन का सीजन, पहला पूरा सीजन। और शायद वैभव से पूछेंगे तो कहेंगे भैया पहला पूरा कहाँ, फाइनल थोड़ी खेले। उनके आगे शायद कोई निकल भी ना पाया। देखिए वहाँ पे विराट कोहली हैं, पर आज जो दो बल्लेबाज थे गिल और साई, वो आउट हो गए हैं। तो वो बंदा जो आगे खड़ा है सूर्यवंशी, 776 रन बना के शायद उसको ही मिल जाए ऑरेंज कैप, क्योंकि विराट कोहली बहुत पीछे इस मैच में। 3 ही प्लेयर थे जो इनको बीट कर सकते थे। विराट कोहली बहुत पीछे, लगभग 100 रन से पीछे हैं वो, 176 रन से। एग्जैक्टली। तो कैसे पहुंचेंगे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। दो जो थे दावेदार वो तो आउट हो गए, दोनों ओपनर्स। लो फुल टॉस, सिंगल लगेगा, बटलर को थोड़ा मिस आउट कर गए। अंदरूनी किनारा लगा बल्ले का। किसी ने कहा हमारी प्रोडक्शन टीम से क्रिस गेल वाली नॉक लगेगी, उसके लिए रन चाहिए पहले तो उतने। यार फाइनल्स में ना वो हाथ पैर फूलते हैं बल्लेबाज के, मैंने बहुत बार देखा है। आईपीएल का लीग मैच, आईपीएल के प्लेऑफ्स पर फाइनल्स में लास्ट टाइम याद है 190 बने थे, और उस मैच में एक ही 50 आया था शशांक का। सारे बल्लेबाज 20-30 फाइनल का दबाव। भाई यही तो होता है ना, 2 महीना खेलने के बाद ट्रॉफी जीतने की जब बारी आती है, बल्लेबाज कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। एंगल के साथ पसंद आया होगा, निशांत सिंधु ने एग्जीक्यूट किया इस बाउंड्री को। बहुत कम रिस्क और 4 रनों का रिवॉर्ड। ट्रस्ट किया यहाँ पर मैनेजमेंट निशांत सिंधु को ऊपर भेजना, क्योंकि इनके अंदर वो स्किल सेट है। मुझे लगता है कि थोड़ा अगर और समय ये गुजारेंगे विकेट के ऊपर तो इस तरह के शॉट्स वो बखूबी खेल सकते हैं। यहाँ पे वो एंगल सही नहीं था, राउंड द स्टंप्स, लेफ्ट हैंडर के लिए ऑन द पैड्स आसानी से ये शॉट खेल दिया। स्लोअर कप डालनी है, वो समय का चयन करना होगा। ये अच्छी बॉल, अच्छा बैकअप प्लेन थे यहाँ पे। 45 पे 2, 6 के बाद 45-2 पावर प्ले में। नहीं होगा। अपोजिट फाइनल में कौन है वो तो पूछना चाहिए ना। .50 को रन रेट। वाह, फाइनल ये जगह में RR होता था, थोड़ा में 13.50 होता था। RR पहले बल्लेबाजी समाप्त, फील्ड खुलेगी और जॉस बटलर का सामना होगा पिछले फाइनल के प्लेयर ऑफ द मैच कृणाल पंड्या से। और स्टंप्स को पकड़ के डालते हैं, बाएं हाथ के स्पिनर हैं, बाउंसर डालते हैं, लो ट्रैजेक्टरी से डालते हैं। एक गेंदबाज है लेकिन उस शैली में पूरा ऑलराउंडर है। और सिंधु के पास अच्छा मौका हीरो बनने का, ज़्यादा चर्चा इनकी हुई नहीं, हालांकि बड़े बड़े स्कोर नहीं आए, मौके मिले लगातार कई मैचेस में। सामने कुणाल है, विद द एंगल, विद द स्पिन, क्या बड़े शॉट वो मारेंगे। बटलर थोड़ा टाइम लेके मैं समझ सकता हूँ, पर 11 मारेगा, 11 बॉल खेली, 15 नाबाद स्पेल निकाला है भुवनेश कुमार हेजलवुड का। यहाँ पे अच्छा मैचअप है सामने। एंगल के साथ अलोंग द ग्राउंड, और थोड़ा ऑलराउंड खेल दिखाना पड़ेगा। साई सुदर्शन अगर होते तो क्या कृणाल पंड्या को इतनी जल्दी लाते या नहीं, ये भी एक मन में बात चलेगी। शायद बताता है कि कितना मजबूत अपनी स्थिति को मानते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इस समय। बहुत ही शानदार स्थिति है इस समय उनकी, क्योंकि टॉप 2 बैटर्स उन्होंने वापस भेज दिया, वो भी पावर प्ले में। अब वो मनमानी बॉलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर इस समय सोचने की जरूरत नहीं है, खास करके ये जो फेज है कि कौन से बॉलर को कब लगाया जाए। यहाँ पर एक जगह दीपेंद्र सिंह होता था ना, रनआउट होता के बारे में सोचना होगा, जो कि रजत पाटीदार कर रहे हैं। दीपेंद्र सिंह 2 विकेटों का गिरना, वो भी पावर प्ले में, ये बहुत बड़ा धक्का है जीटी के लिए। फ्रॉम नेपाल। वही मैं सोच रहा हूँ, अच्छी पिच पे दोनों आउट हो गए। मेरा मानना है जो दबाव फाइनल्स का तो होते ही है जहन में। क्या गेम जीतेगा दोनों प्लेयर थे, पर बड़े मैच ओवर के बाद मीटर खींचेगा। टाटा आईपीएल चैंपियनशिप ट्रॉफी ने की भव्य एंट्री टाटा सिएरा में। एक ऐसा लेजेंड जिसे देखते हुए हम बड़े हुए, अब वह वापस आ चुका है अपने विशाल इंटीरियर स्पेस, बेहतरीन कंफर्ट और दमदार परफॉर्मेंस के साथ। इस मैदान पे आई ये चमचमाती हुई ट्रॉफी इस शानदार अंदाज में।
जाएगी किसकी टीम बस में। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, उन पे उनके फिंगरप्रिंट्स दिखेंगे आपको इस ट्रॉफी पे। क्या वही बरकरार रहेंगे या 2022 के बाद नाम आएगा गुजरात टाइटंस का? राजपोशी की ये शाम। 5 सिंगल्स कृणाल पांड्या के पहले ओवर से 50 रन बोर्ड पे 7 के बाद। टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है कि T20 IPL खेल रहा है, वही समझ नहीं आ रहा है कैसे ट्रॉफी आएगा। ट्रॉफी के बाद से करते बस बोलो। फाइनल को इतना जलील किया कि आरआर ने यशर हैदराबाद को टिकट काटने नहीं दिया। डिजर्व करता था आरआर फाइनल में, वो पनि एक बच्चा के साथ कैसे जीतेगा? वही बच्चा मारता था। ये फाइनल में आपको पहले बैटिंग जो इस मिलता समय था जा ना, रहा वो है लाइव बच्चा प्रसारण पूरी दुनिया में। फैंस की नजर इस फाइनल पे। दुनिया 7 ओवर में 50 रन 2 विकेटें। पिछले ओवर में दिखा कि वो रिस्क जो है उसको इस समय थोड़ा लॉकअप में बंद करके रखा है गुजरात टाइटंस ने। पार्टनरशिप पे बात हुई होगी, 20 गेंदों के ज्यादा साथ में खेल चुके हैं, थोड़े फूक के कदम रख रहे हैं। हमारा नेपाल का गेम ये प्लेऑफ्स में किंगफिशर छक्का अल्ट्रा छक्का चौका चौका देख के एनर्जी से पूरा आ माहौल रहा सेट हूँ। कर ये दिया सब डर डर जिसे इस देख समय के आरसीबी के फैंस तो बहुत मेरे को enjoy तो कर रहे होंगे, देखने का गुजरात मन नहीं टाइटंस कर भी रहा कर रहे हूँ। होंगे, सोच लेकिन लेके बैठ रहा हूँ बड़ी यार। प्रार्थनाओं के साथ। तब रीअसेस करना चाहेंगे, एक ऑड बाउंड्री की तलाश जरूर करेंगे, किस गेंदबाज के सामने ज्यादा किफायती समझते हैं कि रन्स बनाए जाएं। क्योंकि ज़्यादा कंजर्वेटिव नहीं खेल सकते आप, क्योंकि रन्स तो चाहिए आपको। रबाडा नंबर 10 पे आते हैं, वो भी बैटिंग कर सकते हैं। अरशद है, राशिद खान बैटिंग करते हैं, होल्डर तिवारी अच्छी क्या फॉर्म में चल करेगा रहे हैं। राशिद? वशिंदर सुंदर ने स्कोर किया हुआ है, तो ऐसा नहीं कि बहुत वही बात गहराई हो नहीं है। खत्म कौन सा इलाका चुनेंगे? पिछला और मौका था वहाँ पे जब कुणाल पांड्या आए थे, सिंधु स्ट्राइक पे थे, तो वहाँ बड़े शॉट लगा सकते हैं। ज़्यादा कंजर्वेटिव के चक्कर में आप 160 तक रुक जाएंगे। हार तो करना होगा। चौथी बार हुआ है पूरे सीजन में कि दोनों जो ओपनर्स हैं वो पावर प्ले में आउट हो गए हैं। मुंबई के सामने अहमदाबाद में वहाँ तिलक की पारी आई थी, लेकिन 100 पे ऑल आउट किया था। 2 बार अहमदाबाद में हुआ। 240 आएगा, थोड़ा ठोकना चाहिए, थोड़ा। 43% रन भी साई सुदर्शन ने बनाए, शुभमन के 33% आए के साथ। लेकिन आज ये फाइनल की विराट ने जिताएगा था। इसीलिए ये सबसे बड़ा चैलेंज इस साल। हम लोग यार न्यूट्रल फैन है यार, ये गेम का बैटर्स बहुत जल्दी आउट हो गए हैं। वो जो स्टैट्स हैं थोड़ा मदद देना चाहिए ना यार। समय समस्या कितनी बढ़ गई है। वो कैच बहुत ही अच्छा पकड़ा था, डिस्टेंस कवर 19 मीटर्स। जेकब डफी क्या कर रहे थे कैफ? वो तो मान लो सुन पड़ गए भैया, उनकी तरफ कैच आ गया, वो तो हिले ही नहीं। पाटीदार की तारीफ होगी, इतने बड़े के तरह धोखे आ रहा है, भाग के वो कैच को पकड़ा है। नहीं होता वो क्या कर सकता है, वो कैच को लेने ही था। बड़ी बाउंड्री है, बड़ी बाउंड्री, अच्छी फील्डिंग है यहाँ पे। काफी गेंदबाजों ने आज के मैच में जतिन सवाई शॉर्ट बॉल का इस्तेमाल किया बहुत ज्यादा। तो क्या होगा? उमेश कुमार हो चाहे रसिक हो, वो भी बीच में कहा शॉर्ट बॉल डाल रहे हैं। बड़ी बाउंड्री पीछे होती है तो कई बार बल्लेबाज ना स्क्वायर बाउंड्री फंस जाता है। गिल भी हार्ड लेन पे आउट हुए और साई भी शॉर्ट बॉल के खिलाफ। कल हम लोग एक ही साथ थे जहां पर सचिन ने बहुत अच्छी बात कही थी उस फंक्शन में कि फ्यूचर में T20 में बैटिंग अब क्या क्या देखना चाह रहे हैं। उन्होंने 16 ओवर के बाद मीटर खींचेगा कि सभी मॉडर्न T20 बैटर्स में वो स्किल सेट है, वो पावर है, और जो डिफरेंशिएट करेगा, जो खिलाड़ी को अलग बनाएगा खास करके बैटर में, वो है कि आप सिचुएशन के हिसाब से वो अडैप्ट कर पाते हैं कि नहीं। और आज भी चैलेंज है यहाँ पर जीटी के लिए, वो चैलेंज है बटलर के लिए भी, वो चैलेंज है निशांत सिंधु के लिए, क्योंकि इसके पहले इतने बड़े मुकाम पे बहुत कम बार ये देखा है, क्योंकि 2 बैटर बहुत जल्दी आउट हो चुके हैं। कैसे जीतेगा? और कई बार जब ये सवाल पूछा गया, गुजरात टाइटंस ने कहा है कि हमारे टॉप ऑर्डर में बहुत क्लास है, लेकिन हल्के में मत आके हमारे मिडिल ऑर्डर को। आज उसका बैट के साथ मौका है, लेकिन बल्लेबाज विफल रहेंगे। मालूम था कि कोई बाउंड्री नहीं आई थी। रसिक डार की सीजन 17वीं विकेट।
बहुत बड़ा योगदान रहा है डिफेंडिंग चैंपियंस के इस फाइनल तक के सफर में, और आज की शाम पहली सफलता निशांत सिंधु के रूप में। गेंद की लंबाई देखे ना, पिच का इस्तेमाल करना, जिक्र किया था ऐसा बाउंड्री है, स्विंग तो है नहीं हवा में, हार्ड लेंथ 8 मीटर का दायरा, कदमों का इस्तेमाल किया, क्रॉस सीम मार रहा है या उमला ने मार रहा है, ये मालूम नहीं था। छक्का मार नहीं पाए, पिच में धीमापन है, रफ्तार कम है, और बाउंड्री लाइन पे एक अच्छा कैच। 55 पे 3 8 के बाद क्या सफर रहा अभी तक आरसीबी का। फाइनल में टॉस जीता, पहले फील्डिंग करी और अभी तक तो कंट्रोल में है। 20 पे आउट सिंधु, 55 पे 3। सब लोग सुनो भाइयों, मेरे को मालूम था जब आर को जेटी ने जीता ना, वही पूरा ट्रॉफी कौन का हाथ में है वो इसे मालूम हो गया था। आर आया था तो बहुत कंपटीशन होता था, सूर्यवंशी चलेगा तो फिक्स आर को ट्रॉफी होता था। जीटी आया ना, मालूम है विराट कोहली के साथ शुभमन गिल भाई इतना डरता है, इतना डरता है। फाइनल है क्या है? फाइनल है, 8 ओवर में 55 रन है, 3 विकेट। क्या तुम, मुझे लगता है 150 ओवर तक है 100 रन बनाएगा ना, मैं वही चले ना ही शुभमन गिल और निशांत सिंधु ने 3 पे भेजा गया, बटलर पिछले ओवर की आखिरी गेंद पे चल दिए। बटलर कुछ भी नहीं कर सकता है, खुद का देश को लाए तो ध्यान रखता है। में बैटिंग प्रमोशन वॉशिंगटन सुंदर के लिए तो एक और मौका इस ग्रैंड फिनाले में आया है, लेकिन वो आया इसलिए है जल्दी क्योंकि देवदत्त पाडिक्कल के सुरक्षित हाथ थे। बाउंड्री पे पहुंचा दिया गेंद को, लेकिन उसके पार नहीं पहुंचा पाए। रसिक के लिए ये खूबसूरत सीजन थोड़ा सा और बेहतर हुआ। संजय बांगर, पीयूष चावला का स्वागत। कैसे फाइट बैक करेंगे यहाँ पर 2 महीना का, क्योंकि 3 जो टॉप ऑर्डर गेम में तो ये है ना फाइनल, यदि थोड़ा मजेदार होना चाहिए ना। वहाँ पर परसेंटेज निकाला जाए तो तकरीबन जो टीम से हार के आए वही लोग फाइनल जाए, कैसे मजा होगा। जीटी ने वो बनाने वाले बल्लेबाज नहीं है। बटलर जरूर है, थोड़ी सी धीमी शुरुआत करनी पड़ी है उन्हें, क्योंकि अब उनका रोल ये होगा यहाँ से कि किसी न किसी तरह से वो 18वें 19वें ओवर तक वहाँ पर क्रीज के ऊपर मौजूद हो। तो जो बड़े शॉट लगाने की कोशिश भी होगी वो 16 ओवर तक अब थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड तरीके से खेलना होगा। धोनी का 2 ओवर बाकी है, बाजी करने के लिए एक स्पिनर के लिए मारेगा। ये 8 ओवर में लगता है धोनी और यहाँ साझेदारी ढूंढ रहे हैं 5 विकेट लेगा, क्योंकि अगर इस टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक लेके जाना है तो इस साझेदारी को 15-16 ओवर तक जाना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ तो फिर मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। अगर मौजूदा रन रेट से चलेंगे तो 134, लेकिन नजर होगी कहीं ना कहीं वो 170 के आसपास। सुंदर आउट हो गया ना, इस पिच में थोड़ी सी अगर मदद गेंदबाज प्ले में आए और उसके चलते वहाँ पे वो आप जस्ट बॉलर कुछ भी नहीं कर सकता है, वो खुद का टेस्ट कलाई करता है, आईपीएल में नहीं कर सकता है। 100 के ऊपर वाली रफ्तार से गेंदबाजी की है इस सारी गेंदों के ऊपर दूसरे ओवर में। जो राइट पेस इस के हिसाब से मैं मानता हूँ भाई नहीं है ना, 4 रन उस ओवर से बड़े भाई है पे 3। ये हमें जीतना है, और जब तक वो पैशन नहीं आएगा ना तब तक आप जीत नहीं पाएंगे। इस बार रजत पाटीदार ने क्या बोला बार बार, भाई 2025 भूल जाओ, वो हो गया, वो जीत गए, कोई नहीं याद रख रहा, हमें इस साल जीतना है। तो डिफेंडिंग चैंपियन से अटैकिंग चैंपियंस बनना, और जिस तरीके से आरसीबी इस साल भी खेल के आई, उनका एटीट्यूड आप देखें, 1% भी चांस दिया क्या? क्वालिफायर 1 क्लोज भी था दोस्तों, 1 साइडेड चित्रौल करी जीटी की, क्या फाइनल ये क्लोज भी हो रहा है? 1 साइडेड फिर से चित्रौल कर रहे हैं उन्हीं के घर में। भाई तुमने ये देखना था ना अहमदाबाद में जाके क्या करेंगे, मैं बोल भी रहा हूं भाई, अहमदाबाद में जीते थे वो पिछले साल, और उनके पास वो चीज है जो जीटी के पास नहीं है, वो है एक्सपीरियंस, वो चैंपियंस हैं, वो पिछले साल ही बने हैं।
तो भाई और वैसे भी बताओ आपको सच्ची बात पता है क्या है, शुभमन गिल तो विराट को देख के डर जाता है। आपको पता है कि विराट वो तो कर देता है। आपको पता है आज भी यही हुआ था, आज भी यही हुआ, शुभमन गिल बैटिंग कर रहा था, उसने एक चौका जरूर मार दिया, विकेट के पास आके बोले जा रहा था उसको, वो कुछ ना कुछ बोले जा रहा था उसको कि बार-बार पता नहीं क्या कर रहा था, उसको देख देख के बोल रहा था उसको बॉलर को। सो इट इज वेरी एक्साइटिंग कि ये दोनों के दोनों ही पता नहीं ना आमने सामने आते दिक्कत जाती है। बाय द वे जो मो वाट की आप बात बता रहे थे ना, मैं बार बार बताता हूँ कि मो वाट सिर्फ आरसीबी नहीं, क्यों ये आरसीबी की टीम में है एज अ डायरेक्टर। इंग्लैंड की टीम 2015 में स्ट्रगल कर गई थी, 2015 में जब इंग्लैंड की टीम स्ट्रगल करी उसके 1-2 साल बाद लेके आई मो वाट को टीम के अंदर, क्योंकि वर्ल्ड कप नहीं जीत पा रहे थे 50 ओवर। 19 में आए, 19 का वर्ल्ड कप इंग्लैंड जीत गया, आरसीबी के साथ जुड़े, आरसीबी आईपीएल जीत गया, फिर अगबर जीतने वाला है। आगे आइए, माइंडसेट का बहुत डिफरेंस है। ये हो गया था मेरे ख्याल, ये हो गया था, एक जोक मन में आ रहा है कि गेल का असली प्रिंस बनना होगा कैप्टन, ये हो गया था। आगे आ जाइए मानिक जी, और भी सुपर चैट दिखाइएगा जरा। एल बॉस बोल रहे सुशांत आज फाइनल में किस कलर की डैश बता, क्या बकवास कर रहे हैं आप। आगे आइए, और भी सुपर चैट के फैन बोल रहे हैं एज लॉन्ग एज जीटी वाज विद आईपीएल आरसीबी वाज अंडर हिज ड्यूटी। सर हर बार ना पता क्या होता है, अंडर जूती और ये वो फालतू की बातें, मतलब अभी गंभीर इज अंडर टेस्ट मैच में पूरी दुनिया की जूती, अंडर साउथ अफ्रीका जूती, अंडर आर जूती। ऐसा नहीं होता ना सर, हर साल डिफरेंट टीम्स होती है, डिफरेंट कॉम्पोजिशन होती है। अभी भी तो गंभीर साहब कोच है, तब तो मेंटोर थे वो, तो आप जब की बात कर रहे थे तो कैप्टन थे वो। सर मैं तो कह रहा हूँ अगर टाइम पे 5 धोनी जीते, 5 रोहित जीते, तो उनकी जूती के अंडर तो मतलब वहां पे घर बना लिए होंगे लोगों ने। मैं तो कह रहा हूँ कि चलो उनकी जूती के अंडर भगवान करे, चलो अभी तो ऑब्वियसली मैच चल रहा है, मैं एक्स्ट्रा नहीं बोलूंगा, जीतना ऑब्वियसली जीतना चाहिए हमको, मत बोलिएगा, नहीं बोलूंगा, जीतना चाहिए। अरे जीत चुके हैं। अगर 2 ट्रॉफी हो गई और आने वाले सालों में 3 हो गई तो जल के राख हो जाएंगे भाई, तो जल के राख हो जाएंगे। मारिया नजर जी बहुत शुक्रिया थाला फॉर रीजन। ठीक आगे आ जाएगा, और सर यहाँ से 11 ओवर बचे हैं, चलो मैं 110 रन लगा लूं, 10 रन पर ओवर पे, हालांकि ये 6.5 रन पर ओवर खेल रहे हैं, फिर भी 170 पहुंचता है भाई। ये बटलर क्या खेल रहा है भाई, 160 तो सही स्कोर है। अरे यार ये पिच वो वाली नहीं, ये पिच वो वाली नहीं थी जो उन्होंने जल्दी करी और गंदी शॉट्स मारी ना, लप्पे घुमाई, ये पिच वो वाली। Who's been part of many a trophy, and he has this habit of winning big games, and he knows what it takes to win a big game. There's a sense of calmness actually when we have those bowling meetings, and that's so important. And I'm talking about Hoff here because he's a big influence on the bowling group. Bhuvi, who's won a few titles, Virat Kohli, as we know. So these are 3 important names there who won titles and know what it takes to win a big game. DK, what's your reading of the surface up to now? Because we've really had some high-scoring games in Ahmedabad, but this surface, what do you make of it? I'd like to think probably it's a touch slower than normal, but it still feels a deep if you apply yourself. I think There's fielders everywhere. There's fielders everywhere. Don't say that, Asha. DK, you're in the dugout now. You're not in the commentary box. But tell me, 62 for 3. You talked about the surface slightly slow, but you'd still need to get 200. Wouldn't it to be a challenging score? I mean, put on your broadcaster's hat, not their RCB hat. To be honest, the lesser the better for us is all I'm thinking. I'm not able to process how much we should be scoring because we're not batting first. I'm just thinking how quickly can we, how small a target can we keep ourselves, to chase basically. I'm genuinely not able to put the Gujarat Titans hat to think what is a good score. Still looking good for RCB at the moment. I'm delighted you mentioned the calm that comes, I think, with being a champion, and RCB have played like a champion, played front runners. That's an interesting one too. Happy being front runners right through as the favorites? I think so, because we set a mindset of trying to be attacking champions. We want to be trying attacking towards the second title. One thing that we refrained from using was language talking about defending our title. We spoke about trying to get to the second title. That's what we've constantly spoken about, and that's made a big difference. There's another. एक और सफलता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए। जॉर्डन कॉक्स के हाथों में जाके गेंद समाई, जेकब डफी के नाम पहली सफलता इस ग्रैंड फिनाले में आई। आधे ओवर समाप्त और लगभग आधे बैटर्स अब डगआउट में, मुश्किल में टाइटंस। We have an umpire review for a fair catch. I've checked the feet, it's a fair delivery. Can you give me the first angle of the catch, please? यहाँ पर फैन नहीं आने, थोड़ा कंपटीशन होगा तो अच्छा होता था ना।
Yeah, keep it rolling, please. Huh? Okay, can you just take it back? Yeah, rock and Drop. roll there for me. Drop हो गया यार. Okay, thank you. Drop है. I have the ball on the ground between the fingers there. I'm Drop ready with my है. decision for the big screen. Drop. अच्छा है ये. Thank you. Not out. हाँ, not out. थोड़ा तो मजा होना चाहिए ना फाइनल वॉशिंगटन में. सुंदर की पारी चलती रहेगी. 10 ओवर समाप्त, लेकिन वॉशिंगटन की पारी समाप्त नहीं. ये दोनों को कुछ भी आउट नहीं होना चाहिए. जीतेगा आरसीबी जीतेगा, और दो मत नहीं है. कार्तिक क्या दिखा रहा है.